Hello. Am I audible? Hello. आवाज जा रहा है? हेलो. हाँ, आर्यन कुमार. Now, Rani Susan. Next is Ritsa Chaudhary. Jisan Ahmad. Debrota Mato. Rohan Gop. Sumit Kumar. Vivek Giri. Hello. Am I audible? आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीएससी ब्रांच इसमें नहीं अलाउ है. आज अभी का क्लास में उनका अलाउ नहीं है. This class is valid only for mechanical, civil, electrical and EC. This is the remedial class. Remedial class. तो remedial class होने के चलते हम लोग फिर से जो है जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे. ये लास्ट चैप्टर है. इसके बाद जो है कोर्स कंप्लीट. पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट. जो भी पढ़ाया जा रहा है सबका नोट्स अवेलेबल है या नहीं है, फाइबर ऑप्टिक्स छोड़ करके. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नोट्स मैकेनिकल ब्रांच में धनेश्वर महतो को दिया हुआ था. धनेश्वर महतो सर्कुलेट ऑल द नोट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अदर सभी कुछ तो है दिया हुआ. अदर जितना भी चैप्टर है सबका नोट्स अवेलेबल है. जस्ट यू हैव टू लर्न द नोट्स. So I am sharing my screen. देखो दिख रहा है. सेम वही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं. अब ये रिपीट नहीं करेंगे, अभी लास्ट है ये. कल से टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ये सब चलेगा. फाइबर ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the study of communication by transmission of light through fibers made by glass or plastic is called fiber optic. It works on the principle of total internal reflection. The branch of optics which deals about the study of communication of transmission of light through fibers made by glass or plastic is known as fiber optics. It works on the principle of total internal reflection. Now, fiber optics is a technology related to the transportation of optical energy like or light energy in guiding two medium, especially glass fiber. In case of electronic communication, information is normally carried over in the form of radio wave or microwave through copper wire or coaxial cables. If light waves are used instead of radio waves or microwaves, the number of signals transmitted can be increased. इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो. फाइबर ऑप्टिक्स का इस पार्ट में किसी को दिक्कत है तो बोलो. रानी सुसैन, देब्रोतो मातो,
किसी को कुछ दिक्कत है? फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी related to transportation of optical energy in guiding two medium such as glass fiber. और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन कैरिड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, इसके द्वारा जा रहा है, कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल से भी जा रहा है। In 1880, 1880, in 1880, Graham Bell, Graham, Graham Bell, 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 Graham Bell invented the photophone in which the transmitted speech on a beam of light. In 1960, it was established that light could be guided through glass fiber. Now, next is the critical angle. Critical angle is that angle of incidence in a denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degrees and it is denoted by C or theta C. Sometimes it can be denoted by this theta C. सी से भी हम लोग क्रिटिकल एंगल को बोल रहे हैं और थीटा से भी बोल रहे हैं, थीटा सी से भी बोल रहे हैं। देखो थीटा क्या हो गया? एंगल, एंड सी फॉर क्रिटिकल एंगल। जस्ट ए मिनट। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम is 90 degree. So according to this figure, ये इस फिगर के आधार पर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल? तो पूरा पार्ट को लिखना है डायग्राम के साथ। तो क्रिटिकल एंगल में देखो ये 1 और 2 ये लिखा हुआ है ना, तो 1 be the denser medium and 2 denote the rarer medium. In both the medium, in between these two medium, there is a line. देखो तो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये लाइन नहीं है, ये क्या सेपरेशन लेवल है। दो लेवल को, दो मीडियम को ये जोड़ता है। दो मीडियम का बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, सेपरेशन लेवल ऑफ these two medium 1 denser medium and 2 denotes the rarer medium. denser medium मेरा कहाँ है? नीचे तरफ। और rarer medium क्या हो गया? एयर, ये 2 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल में ray of light always move from denser medium to rarer medium. denser medium से rarer medium में ये ray of light ट्रेवल करेगा। ray of light critical एंगल के लिए denser medium to rarer medium always it travels from denser medium to rarer medium. So when a ray of light passes from an optically denser medium into an optically rarer medium, क्रॉसर को ध्यान दो, the refracted ray, ये refracted ray है ना, means one medium to another medium में जब रे पार कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होता है? It bends towards the normal or it bends away from the normal. तो हम लोग को क्या मालूम है कि when a ray of light passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. And if the ray of light passes from denser to rarer medium, in that case the ray of light bends away from the normal. So here the ray of light passes from this denser medium 1 to rarer medium 2. Then in that case
the refracted ray bends away from the normal. ये normal है, normal से दूर भाग रहा है, and ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक angle of incidence, here angle of reflection. अब क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा इंक्रीज किया है। तो जब as the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases. Angle of refraction भी increase करेगा, and a stage is reached when the refracted ray just grazes over the surface of separation. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा, ये सेपरेशन लेवल के ऊपर में जो है ये आ जाएगा। If the angle of incidence is further increased, then the reflected ray disappears. The ray is totally reflected. क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आया जब वो सेपरेशन लेवल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कम्स ओवर द सेपरेशन लेवल। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, we have to increase the angle of incidence. In that case, the reflected ray disappears, means the ray is totally reflected towards the first medium. So this is here. This point is known as critical angle, in which the angle of reflection reaches to 90 degrees, or reflected ray grazes over the separation level. Now, next is the total internal reflection. Total internal reflection. क्रिटिकल एंगल तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। खुशबू कुमारी, खुशबू, यस सर। क्रिटिकल एंगल तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। राजकुमार, इज देयर एनी डाउट? राजकुमार, up to critical angle means fiber optics and critical angle. राजकुमार, कोई डाउट नहीं है? नो सर। Total internal reflection. When a light ray, just a minute, दो कैंडिडेट आए हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं। प्रवीण सिंह कुंटिया, when a light ray, total internal reflection, when a light ray traveling an optically denser medium into optically rarer medium is incident at an angle greater than the critical angle for the two medium, the ray is called total internal reflection. So according to these figures here, in figure A, there are two medium, N1, two medium, denser and rarer medium. The refractive index of the denser medium is N1, and refractive index for rarer medium is N2. This is N1 for refractive index. वो पता नहीं पड़ता है। Hello? Hello?
किसी कुछ बोलना है क्या जी? N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का है। सेम क्रिटिकल एंगल का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम से मूव किया किधर गया? रेरर मीडियम की तरफ। तो जैसे ही डेंसर टू रेरर जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। जस्ट ए मिनट रुको। नॉर्मल से ये दूर हट रहा। यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब according to this, according to the diagram B, the B diagram indicates that as the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases, and a stage is reached when the refracted ray grazes over the surface of separation level. Now, this figure C indicates that as the angle of incidence increases, the total internal reflection should be covered. So, when a light ray traveling in a medium of refractive index N1 strikes at a second medium of refractive index N2, the angle of reflection is theta. According to the Snell's law, we can write Ni sin I, Ni refractive index of the denser medium into sine of angle of incidence here is equal to N2 into sine of angle of reflection, N2 sin theta, N1 sin I is equal to N2 sin theta. Now, when a ray of light is traveling from an optically denser medium to less denser medium, it will bend away from the normal according to this diagram. It will not be reflected if it strikes the surface at an angle equal to greater than the particular angle known as critical angle. It will be totally reflected at the surface between the two medium. Prasar ko dhyan dena. Suppose if theta, angle of reflection theta is equal to 90 degree in this here according to diagram B, if theta angle of reflection is equal to 90 degree, then angle of incidence is equal to theta c critical angle. So we know that N1 sin I is equal to N2 sin theta. So N1 sin theta c, in place of I, we have write theta c, because I is equal to theta c is equal to N2 sin theta. So sin theta means the value of theta is 90 degree. So N2 sin 90, sin 91. So sin theta c is equal to N2 divided by N2, N1. Means reflect sin theta c critical angle is equal to refractive index of the rarer medium, the ratio between the refractive index of the rarer medium to the refractive index of the denser medium. This is the total internal reflection process. Now, next thing is the conditions required for total internal reflection. There are two conditions which is required for total internal reflection. One is the ray of light. This ray of light must travel from denser medium into rarer medium. And second point is the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the pair of two medium. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम. Second point,
the angle of incidence in the rarer medium. देखो डायग्राम में angle of incidence कहाँ पर है? Denser medium. The angle of incidence in the denser medium must be greater than the angle of must be greater than the critical angle for that pair of media, two media. Now next thing is the relation between critical angle and refractive index. Here there is a word refractive index is coming. What is the relation between refractive index and critical angle? What is the relation between critical angle and refractive index? So refractive index is equal to 1 by sin c. 1 by sin c, sine of critical angle. The relation between the refractive index and the critical index can be written as n is equal to, n means refractive index, n is equal to 1 by sin c. Remember this formula. N is equal to 1 by sin c. Refractive index of the two medium is equal to 1 by sine of critical angle. Universe of sine of critical angle. So this is the basic concept about fiber optics. Fiber optics, critical angle, total internal reflection. Conditions required for total internal reflection and the relation between the refractive index as well as the critical angle. So is there any doubt? Please ask. कोई डाउट है तो बोलो. हेलो, इतना में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे. मुस्कान दुबे, मुस्कान. No, sir. No, तो तुम ही बताओ तो what is the relation between critical angle and refractive index? Relation between critical angle and refractive index. बोलो तुम, मुस्कान. प्रवीण सिंह कुंटिया, प्रवीण. विवेक गिरी, रिलेशन बोलो क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. विवेक. Yes, sir. रिलेशन क्या है? क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या बोले? बोलो विवेक. n is equal to 1 by sin c. Refractive index is equal to inverse of sin c. Sine of angle of critical sine of critical angle inverse. चलो रोहन बोलो, what are the conditions required for total internal reflection? रोहन. Yes, sir. बोलो क्या क्या होना चाहिए कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? हिंदी में भी समझा रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? पूछना चाहिए ना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है. पहला क्या है? रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही मूव करेगा. सेकंड पॉइंट क्या है?
एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल कहां पर है? डेंसर मीडियम में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम देखो ना जी, इस डायग्राम में यस तुम लोग को समझ नहीं पा रहा लगता है, बोलो नहीं समझ पा रहा तो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि कभी भी रे ऑफ लाइट पास करेगा तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पार होगा। अभी इतना में कोई भी एक बात बताओ तुम लोग, जिसा नंबर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है? जिसान, Yes, sir. रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है? रेयर मीडियम उसको बोलते हैं सर जिसमें थी प्रकाश का लाइट सर, लाइट का रे टुवर्ड्स द नॉर्मल से अवे चले जाए सर, और डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है। ठीक है, रेयर मीडियम एग्जांपल दो, एग्जांपल बताओ रेयर मीडियम का। एयर सर, एयर। एयर, गुड, वेरी गुड। तो रोहन अब तुम बताओ डेंसर मीडियम का ये बताओ, एग्जांपल दो। वाटर वाटर, दम बिल्कुल सही Yes. बोला। अब हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में Yes. तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना। अभी बोल रहे हैं, मान लो Yes. हम लोग सपोज करो ऊपर से कोई एक छड़ी है, अभी हम पूरा हिंदी में बोल रहे हैं, पानी के अंदर हम ऊपर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे कि छड़ी जो है, स्टिक 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 लगता क्या है कि यहां से सेपरेशन लेवल क्या है? वाटर और एयर दोनों का जो बॉर्डर है, बॉर्डर वहां पर जब हम स्टिक को रखते हैं तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को लगेगा क्या कि पानी के अंदर जो है वो झुका हो, वहां से नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगेगा क्या कि नॉर्मल की तरफ है, ज्यादा तिरछा है, कम तिरछा है, ठीक है? माने उसको बोल सकते हैं हम लोग फिजिक्स की भाषा में कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब एयर से वाटर में जा रहा था, रेयर मीडियम जो कि एयर है और डेंसर मीडियम जो कि वाटर है, तो एयर से वाटर में जब हम लोग उसको देख रहे हैं तो लग रहा है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है इन रिस्पेक्ट विद द डेंसर मीडियम। तो जैसे ही वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? कम हो जाएगा, कम होगा ना। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि मान लो पानी के अंदर अभी हम डुबकी लगाए हुए तो वहां हम छड़ी को जो है ऊपर की और रेयर मीडियम तरफ जो है पानी के बाहर हम देखना चाहते हैं किधर जा रहा है छड़ी, स्टिक कहाँ जा रहा है। तब क्या करेंगे? तो नीचे से जब देखेंगे तो हम लोगों को लगे क्या क्या कि एयर का एकदम नॉर्मल से बहुत दूर भाग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट वहां पर कितना है? डेंसर मीडियम में कम है। जैसे ही एयर में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ जा रहा है, उसका स्पीड वेलोसिटी जो है उसका बढ़ जा रहा है। अब यहां पर वही केस फॉलो करेंगे हम लोग। N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का है, सॉरी ये फर्स्ट मीडियम, ये डेंसर मीडियम। क्रसर को ध्यान दो, यहां पर मेरा डेंसर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है और ये N2 जहां लिखे हैं इस लाइन के ठीक ऊपर में देखो, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर में N2 लिखा हुआ है। तो N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का। दोनों के बीच में ये सेपरेशन लेवल है। अब ये रे ऑफ लाइट देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तरफ जा रहा है, तो
at the separation level it makes an angle I. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बनेगा, क्रसर को ध्यान दो, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना. सो आई एम अपग्रेडिंग दिस क्लास. नाउ यू ऑल ज्वाइन इन द सेम लिंक. यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डेंसर टू रेरर में जा रहा, तो क्या होगा, ये नॉर्मल जो है इस नॉर्मल से, जस्ट ए मिनट वेट करो, नॉर्मल से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हम लोग बोल सकते हैं ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां मेरा क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन. वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में रे ऑफ लाइट, if ray of light moves from one medium to another medium, तो हम लोग यहां क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज थीटा. अब सेम डायग्राम को we have to develop this diagram as a B, figure B. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर, अब देखो यहां मेरा एंगल, ये इंसिडेंट एंगल आई यहां पर था, ये इंसिडेंट एंगल अब मेरा क्या हो रहा, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं. तो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बढ़ते गया. यहां इतना था ना, अब ये बढ़ते गया धीरे धीरे. और एक ऐसा समय आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते गए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये सेपरेशन लेवल में ये पहुंच गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उस पॉइंट में क्या हो रहा, क्रिटिकल एंगल मेरा क्रिएट हो रहा. इस ये जो रे है ये क्रिटिकल रे बोल रहे, और दिस रे इज जस्ट ग्रेजेज ओवर द सेपरेशन बिटवीन द टू मीडियम. दो मीडियम को ये रे, अब ये सेपरेशन लेवल के ऊपर ये रे आ गया. नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड डायग्राम. थर्ड डायग्राम क्या है, फिर हम रे ऑफ लाइट को, सॉरी, इंसिडेंट रे को बढ़ाते गए, इंसिडेंट रे को बढ़ाते गए. अब यहां पर ये क्या होगा, क्रिटिकल रे, अब ये बढ़ते बढ़ते वापस जो है मेरा फर्स्ट मीडियम में ये इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द फर्स्ट मीडियम बोल रहे हैं, फर्स्ट मीडियम में आ गया N1. अब हम लोग जब when we have discussed about the two medium, so according to Snell's law के आधार पर refractive index, the product of refractive index and the sine of angle of incidence must be equal to the product of the refractive index and the sine of angle of reflection of the second medium. तब हम लोग स्नेल्स लॉ के आधार पर बोल रहे हैं N1 sin I is equal to N2 sin थीटा. ये अभी हम N1 sin थीटा C is equal to N2 sin 90 डिग्री, इस पार्ट को ध्यान मत दो. इस डायग्राम के आधार पर जब ये मेरा पूरा फिगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तब उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ ऑल दिस डायग्राम वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ N1 sin I is equal to N2 sin theta, where I be the angle of incidence and theta be the angle of refraction. Reflection नहीं, refraction. So when a ray of light is traveling from an optically denser medium to optically rarer medium,
it bends away from the normal, it will not be reflected. It strikes at the surface at an angle equal to or greater than critical angle. उस केस में क्या बोल रहे हैं, जब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, कर्सर को ध्यान दो, ये आई जब बढ़ाते गए हैं, यहाँ आई बढ़ाते गए ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी तो ये क्रिटिकल रे सरफेस पर आया। आई इज इक्वल टू ये थीटा सी क्रिटिकल एंगल। अब स्नेल्स लॉ के आधार पर हम लोग जान रहे हैं n1 sin थीटा सी, n1 sin है, हम लोग स्नेल्स लॉ के आधार पर जान रहे हैं n1 sin थीटा सी, क्योंकि आई के जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे थीटा सी, साइन का साइन इज इक्वल टू n2 sin 90 डिग्री साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, क्या है तो ये पार्ट मेरा कितना आया 1, n1 sin theta c is equal to n2, so sin theta c is equal to this n2 by n1। और किसी को दिक्कत है बोलो। अब हम लोग फिर जा रहे हैं नेक्स्ट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमारा ये है एवांसेंट वेव एंड टनलिंग ऑफ फोटोन्स, एवांसेंट वेव एंड टनलिंग ऑफ फोटोन्स, इस सिलेबस में है। अच्छा, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के आधार पर कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन the critical angle for that the pair of media। and last क्या है, relation between critical angle and refractive index। refractive index को किससे लिख रहे हैं, n से, n is equal to 1 by sin c, 1 by sin c, c means critical angle। now next is the evanescent wave and tunneling of photon। एवांसेंट वेव, देखो यहां मेरा क्या है, वी आर टेकिंग अ प्रिज्म लाइक दिस, so there is, this is the part of a prism। so when a incident wave is incident at this prism, तो ये क्या होगा, वेव मेरा रिफ्लेक्टेड वेव इधर क्रिएट हो रहा। अब हम बोल रहे हैं द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ठीक इस प्रिज्म के ठीक सामने यहाँ पर, देखो इस प्रिज्म के ठीक सामने इसका अदर पार्ट जो है उसको हम यहाँ इंटरफेस पर टेस्ट किए। उस केस में देख रहे हैं, यहाँ देखो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ मेरा we are seeing the reflected wave only। when incident wave is incident at the surface of a prism, after that we have seen the reflected wave। when we place another part of the prism in face of this first prism, if we kept the another part of second prism over this face of first prism, so this incident wave is incident at the surface of second prism, यहाँ पर इंटरफेस हुआ, and it is reflected towards the downward direction, and maximum ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, देखो तो ये ट्रांसमिट हो रहा है इस डायग्राम के आधार पर। So the phenomena of total internal reflection in a prism by treating light as an electromagnetic wave, there is a penetration of the wave for a distance of order of few wavelengths beyond this surface।
if the face of a second glass prism is kept parallel to the interface,